Hi students, today's class is stereoisomerism. Stereoisomerism. Structural isomerism completed, now stereoisomerism. Now, stereoisomerism. Stereoisomerism is a very important topic. Stereoisomerism means compounds having same molecular formula and the same structure. Compounds having same molecular formula, same structure and same structure, but differs in the arrangement of atoms in the space, but differs in the arrangement of atoms in the space. See, very important, in this space. Suppose compound is like this. For example, carbon, this is carbon. Groups A, B and C, D. 4 different groups are arranged around the carbon atoms. See here, A is at the top position, B is at the bottom, C is at the right hand side, D is at the left hand side. Suppose compound is like this. Here A, here B, here D, here C. See here, what are the differences in between these two compounds? Two compounds have same number of carbon atom. One carbon atom. And one A and here also one A. One B, here also one B. One C and here also one C. Structure, for example, tetrahedral structure. Here also tetrahedral structure. And both have same physical properties. Both have same physical properties, same chemical properties, but differs in dash. They differs in various properties. Those properties we can explain here. Now see here. If arrangement is like this, if arrangement is like this, sometimes compound act as a good medicine. If arrangement differs, means here C is arranged at right hand side. In this compound C is arranged at left hand side. As a result, suppose if it acts as a good medicine, it acts as a poison. सी ऐसा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं लेफ्ट का राइट का लेफ्ट होने से. सो इसीलिए कंपाउंड में जिस एटम किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है कि या राइट हैंड साइड है कि वो समझना पड़ेगा पहले. उसी तरह का कंपाउंड बनाना पड़ेगा. मेडिसिन बनाना है तो एक टाइप ऑफ कंपाउंड मेडिसिन जैसा काम करेगा. तो जस्ट एटम्स लेफ्ट का राइट का लेफ्ट होने से उसका प्रॉपर्टीज कंप्लीट डिफरेंट हो जाएंगे. वो पॉइजन जैसा काम करेगा. सो यहाँ पर देखने से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ए एटम्स, बी एटम्स, सी एटम्स, all are same and structure is also same, but arrangement is different. Here spatial arrangement, space ये कार्बन के साइड्स में है ना, ये स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया यहाँ पर. सो यहाँ पर सी राइट हैंड साइड है, यहाँ पर डी लेफ्ट हैंड साइड में है. इधर ऑपोजिट हो गया, सी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और डी राइट हैंड साइड में आ गया. सो इसीलिए प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं. सो ऐसे वाले कंपाउंड्स का भी स्टडी करेंगे. वैसे वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. सो कंपाउंड्स हैविंग, वो सब जरूर नहीं, ये डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, but differs in the arrangement of atoms in the space. Okay, now stereoisomerism is of how many types? Stereoisomerism is of two different types. Okay, see here, stereoisomerism is of mainly two types. That is cis trans isomerism, means geometrical isomerism
and another one is optical isomerism, and conformational isomerism is also included in this. Conformational isomerism अलग से पढ़ाते हैं, ये stereo isomerism में नहीं आएगा. Sometimes it includes in stereo isomerism. See here now. See, two or more than two compounds having same molecular formula, same structural formula, but different arrangement of atoms or groups in this space. ये definition भी लिखिए. Okay. So write down this definition also there. Two or more than two compounds having same molecular formula, same structural formula, but different arrangements of atoms or groups in this space are called stereoisomers. 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 Okay. Now here, stereoisomerism is of two types. इसी तरह भी पढ़ा सकते हैं, configurational isomerism and conformational isomerism. Number one or A, configurational isomerism. Configurational isomerism means here geometrical isomerism and optical isomerism. ये दो भी आते हैं इसमें. So configurational isomerism. Stereoisomers which have following characteristics. Stereoisomers which cannot interconvert in each other at room temperature due to restricted rotation known as geometrical isomerism. See, ये लिखो, geometrical isomerism का definition है. Geometrical isomerism. What are geometrical isomers? What is geometrical isomerism? Stereoisomers. Stereoisomers means पता चल गया ना यहाँ पर arrangement. Spatial arrangement is different. Stereoisomers which cannot interconvertible. Suppose A isomer cannot be converted into B, B cannot be converted into A. So stereoisomers which cannot interconvert each other at room temperature due to restricted rotation known as geometrical isomerism. Restricted rotation. Suppose single bond हो गया तो ऐसा होने से single bond, suppose देखिए ऐसा होने से single bond we can rotate here like this. Okay. But double bond होने से यहाँ पर restriction हो जाएगा, ये movement नहीं आएगा, ऐसा movement नहीं होगा. So double bond होने से restrict हो जाएगा. So stereoisomers which cannot interconvert in each other at room temperature due to restricted rotation known as geometrical isomerism. Okay. Next definition is stereoisomer which cannot superimpose on each other due to chirality known as optical isomerism. First write down that definition, I will explain clearly. Don't worry about that. First write that definition. Stereoisomers which cannot superimpose on each other due to chirality known as optical isomerism. Chirality means what you call chiral carbon atom. If a carbon atom is bonded with 4 different groups A, B, C, D, then the compound is called chiral compound. This carbon atom is called chiral carbon atom. Chiral carbon atom. ऐसा A, B, C, D 4 different groups रहने से कार्बन के आसपास में, then that compound is called chiral compound. That carbon atom is called chiral carbon atom. ये chirality रहने से, compound में chirality रहने से, chiral carbon रहने से ये superimpose नहीं हो जाएंगे. Superimpose means suppose this is hand, 5 fingers है, ये 5 fingers ये thumb के place में join हो गया, ये middle finger के पास middle finger, ये point finger के पास point finger and ring finger and last finger ऐसा overlap हो गए. इसे बोलते हैं कि overlapping. So superimpose हो गया, ये superimpose हो गया. अगर ऐसा आने से superimpose नहीं हो जाएगा, ये thumb के place में small finger आ जाएगा और remaining all change हो जाएंगे, isn't it? So that is why not superimposable. Geometrical isomerism, stereoisomers which cannot superimpose on each other due to chirality is known as optical isomerism.
बाद में मैं पढ़ाऊंगा, क्लियरली आएगा वो, वहीं पर आप समझ सकते हैं, अभी घबराना मत, जस्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखो आप, उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा आपको। ओके, सो दैट इज अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स में दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक, और दूसरा होता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दो में भी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, geometrical isomerism, which compounds exhibit geometrical isomerism means alkenes, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है। किसके लिए रिस्ट्रिक्शन होता है? डबल बॉन्ड रहने से, और ट्रिपल बॉन्ड रहने से भी होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड compounds do not exhibit geometrical isomerism, only compounds having double bond, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ऑक्साइम्स मींस C डबल बॉन्ड N रहने से उसको बोलते हैं कि ऑक्साइम्स, एंड एजो कंपाउंड्स मीन्स N डबल बॉन्ड N, ऐसा रहने से इसी तरह कंपाउंड्स एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट टू डबल बॉन्ड, while cycloalkanes also show geometrical isomers, cycloalkane, cyclobutane, cyclopropane, cyclopentane, like that. Such type of compounds also shows geometrical isomerism. Cycloalkanes only, cycloalkanes, okay, like that. Now note down this point, geometrical isomerism, alkenes, oximes, azo compounds, and cycloalkanes exhibit geometrical isomerism. Now geometrical isomerism in alkenes, geometrical isomers in alkenes. Reason, restricted rotation about double bond. Alkenes show geometrical isomerism. Why means restricted rotation about double bond. It is due to overlapping of p orbital. डबल बॉन्ड कैसा फॉर्म होता है आप जानते हैं ना। सो ये p ऑर्बिटल, इसमें वाला ये p ऑर्बिटल, ये दो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ये बॉन्ड होता है कि इफ द ओवरलैपिंग takes place along the internuclear axis, then the formed bond is called sigma bond. Lateral overlapping pi bond फॉर्म होता है कि p ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने से। सो ये p ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने से पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये पाई बॉन्ड फॉर्म होने से रोटेशन नहीं होता है। एक ही बॉन्ड रहने से कार्बन कार्बन के बीच में वो इजीली रोटेट हो सकता है। डबल बॉन्ड आने से रोटेशन नहीं होगा। ओके, सो geometrical isomers in alkenes. Reason why alkenes exhibit geometrical isomerism means due to restricted rotation about double bond. Why it restricts the movement? Due to overlapping of p orbitals. Okay, now ये सब जरूर नहीं कैसा फॉर्म होता है वो पूरा। Now next one is, now listen to me here, very important one. Now look at the board here, geometrical isomers. So अभी क्या मालूम हो गया अभी तक? स्टीरियो आइसोमेरिज्म is of how many types? Two types, that is geometrical isomerism and optical isomerism. Which compounds exhibit geometrical isomerism? Geometrical isomerism exhibited by alkenes, okay, and oximes, okay, N double bond O, oximes, and azo compounds, N double bond N, azo compounds, okay, and cycloalkanes exhibit geometrical isomerism. Okay, now अभी geometrical isomerism के बारे में समझेंगे, उसके बाद optical isomerism. Geometrical isomerism, which compounds exhibit geometrical isomerism means अभी ऐसा पढ़ा देंगे। C double bond C में compounds having C double bond C AB groups, यहाँ पर भी AB groups, and C double bond C AB AC, C double bond C AB BC, C double bond C AB CD, four different groups.
having such structures exhibit geometrical isomerism. Geometrical isomerism. Okay. Now compounds which contain C double bond C, AB, A2. Compounds having C double bond C, AB, B2 do not exhibit geometrical isomerism. So these 2 points are very, very important. Now CAB, AB. देखो first one, this one, CAB and AB. Okay. Now see here, C double bond C, A and B. See, if similar groups are arranged at same side, then the compound is called cis isomer. If similar groups are arranged at opposite direction, AB, BA, that is called trans isomer. Cis isomer and trans isomer. Okay. Cis isomer. Suppose compound is like this. Suppose CH3, CH, Cl, CH, what you call, see, compound is CH3, ऐसा लिखेंगे, C double bond C, what you call, यहाँ पर एक Cl, here one Cl and CH3, or you can write this compound like this, CH3 CCl double bond CCl CH3, both are same. Okay, so is it exhibit geometrical isomerism or not? Yes, it exhibits, because here 2 carbon atoms are there, double bond is there in between 2 carbon atoms. This carbon atom contains 1 chlorine and 1 methyl group. This carbon atom contains 1 chlorine, 1 methyl group. If 2 chlorine atoms arranged at the same direction, then it is called a cis isomer. ये compound इसी तरह भी लिख सकते हैं, Cl CH3 as it is वैसा ही है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो है वो CH3 और Cl इसी तरह आ गया. सो ऑपोजिट साइड में आ गया Cl और CH3 ऑपोजिट साइड में आ गया. इस कंपाउंड को बोलते हैं कि ट्रांस आइसोमर. If similar groups are arranged at opposite direction, then it is called trans isomer. Okay, cis isomer, trans isomer. Now, suppose compound is like this. Suppose C double bond C, AB, AC. समझे, यहाँ पर AB है, यहाँ पर AC है. मिनिमम वन ग्रुप, दोनों कार्बन आइटम्स के ऊपर जो ग्रुप्स है वो मिनिमम 1 ग्रुप सिमिलर होने से that exhibits geometrical isomerism. See here, C double bond C, AB, AC. Okay, so this is called cis isomer. Okay, because 2A similar groups are arranged at the same side. Suppose C double bond C, A, B, यहाँ पर what you call C, A. Here similar groups A are arranged at opposite direction. ये दो इक्वल होने का जरूर नहीं, B एंड C सिमिलर ग्रुप्स होने का जरूर नहीं, B एंड C मिनिमम 1 ग्रुप सिमिलर होने से चालू होगा यहाँ पर. सो A is similar group here arranged at opposite direction, that is why called trans isomer. Okay, and then here for example compound is like this.
compound is like this. Suppose compound is C, double bond C, यहाँ पर A है, B है, और यहाँ पर B और A. Here A is common. Sorry, here B, A, B, B, यहाँ पर C. Okay, like this. Here B is common here, isn't it? दोनों कार्बन के आइटम पे जो ग्रुप्स है वो मिनिमम वन ग्रुप टैली होना पड़ेगा. बी टैली हो गया, इसके ऊपर भी बी है, इसके ऊपर भी बी है, ये दो बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर. और सी डबल बॉन्ड सी, ये बी यहाँ पर है, अभी ये बी कॉमन है ना, बी यहाँ पर लिखे, सी इधर लिखो. अभी बी दो similar groups are arranged at the same side, so this is called cis isomer. इसी तरह बता सकते हैं. अगर ए बी सी डी इसके प्लेस में अल्काइल ग्रुप्स और क्लोरीन फ्लोरीन डिफरेंट ग्रुप्स दिया जाता है, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको. फॉर एग्जांपल व्हाट यू कॉल 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट. और ऐसा 4 कंपाउंड्स दिए जाते हैं, उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, पहले उसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा. स्ट्रक्चर लिखने से आपको पता चलेगा 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन कैसा होगा. वो 2 क्लोरो मीन्स 1 2 3 4 ब्यूट है ना, ये रूट वर्ड इसीलिए 4. 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन, 2 के पास डबल बॉन्ड. ओके, सो इसे हाइड्रोजन लगा दो, CH3 C Cl CH3 डबल बॉन्ड CH CH3. ओके, और इसी सेम कंपाउंड इसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक CH3, और इसको एक हाइड्रोजन और CH3. स्टमक पेन వెళ్తావా? రైట్, వెళ్ళు. So this is the compound. Here CH3 similar groups are arranged at same side, that is why it is called cis isomer. इसका ट्रांस आइसोमर कैसा लिखेंगे? C डबल बॉन्ड C Cl CH3, और ये CH3 यहाँ पर लिखो, यहाँ पर H लिखो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए CH3. So this is called trans isomer. Cis isomer and trans isomer means finally the compounds which contain C double bond C and having two different groups on both the carbon atoms. यहाँ पर ये भी रहना, यहाँ पर भी ये भी रहना, 2 different groups. इसके ऊपर जो है डिफरेंट होना चाहिए, इसके ऊपर भी जो है वो भी डिफरेंट होना चाहिए. सपोज C डबल बॉन्ड C, ये सिमिलर ग्रुप्स रहने से ये नहीं एग्जिबिट कर सकता है. और यहाँ पर भी व्हाट यू कॉल, यहाँ पर ये भी दो डिफरेंट होने से भी एक के ऊपर सिमिलर ग्रुप्स रहने से दैट डज नॉट एग्जिबिट ट्रांस आइसोमेरिज्म. नाउ अभी बता दूंगा एग्जांपल्स के साथ साथ. वो सपोज कंपाउंड इज लाइक दिस, कंपाउंड इसी तरह है, दैट इज CA2 CAB CB2 डबल बॉन्ड CAB. ये दोनों कंपाउंड्स में सिस आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, क्योंकि सपोज ये फर्स्ट कंपाउंड लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, ये दो ग्रुप्स है, इसके ऊपर ये B है, और ये सपोज ये एंड ये सेम साइड है ना, इसको सिस बताएंगे. अगर इसका ट्रांस आइसोमर कैसा लिखेंगे? C डबल बॉन्ड C, ये इधर से चेंज करके इधर लिखने से ये इधर लिखने से सेम आएगा. ओके, अगर ये बदला के लिखेंगे, बी ऊपर ले जाके ये इधर ला के लिखने से क्या होगा? वो बी एंड ये, यहाँ पर भी ये सिमिलर साइड आ गया. इसमें जैसा ये एंड ये जैसा सेम साइड है, इधर सेम साइड आ गया, ये भी सिस होता है. इसी इट इज नॉट ए ट्रांस आइसोमर. समझे क्या नहीं? सो अंडरस्टैंड और नॉट? श्रुति जो पढ़ा रहा हूँ वो अंडरस्टैंड होता है क्या नहीं? एक बार चैट बॉक्स में रख दो. ओके, राइट. सो लाइक दैट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में
सेम ग्रुप्स सेम कार्बन पे दो ग्रुप सेम रहने से, सिमिलर रहने से, A2 और B2 ऐसा रहने से दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म. यस सर, अंडरस्टूड. ओके, राइट, वेरी गुड. नाउ अभी देखो, नाउ दैट इज सिस ट्रांस आइसोमर है ना. नाउ see here, cis 2 butene. Cis 2 butene means 1. This carbon is 1. ये कार्बन आइटम 1 होता है, A2, A3 और 4. ओके, दिस इज ब्यूटीन 1 2 3 4. ब्यूट टू ईन, समझे, 2 के पास डबल बॉन्ड है इसीलिए ब्यूट टू ईन. इसका अरेंजमेंट है कि सिस सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, ये दो भी टैली हो गए, एक साइड है, दो CH3 सेम साइड है इसीलिए सिस. इसका ट्रांस CH3 यहाँ पर CH3 लिख के H ऑपोजिट लिखने से ट्रांस हो जाएगा. सो सिस 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन exhibit geometrical isomerism or not means yes, exhibit geometrical isomerism, that is cis isomer and trans isomer. Okay, now see here, condition क्या होना चाहिए geometrical isomerism exhibit करने के लिए, क्या होना चाहिए. Each sp2 carbon atom have different atoms or groups. See, this carbon atom is sp2 or sp3? sp2 कार्बन, जानते हैं ना आप, डबल बॉन्ड रहने से कार्बन के पास वो sp2 कार्बन हो जाएगा. ये sp2 कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स. sp2 कार्बन हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, डिफरेंट एटम्स AB, यहाँ पर भी डिफरेंट एटम्स AB. वैसा रहने से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है. अगर वैसा नहीं तो, अगर इसी तरह नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा. ओके, लाइक दैट. ओके, सपोज देखिए यहाँ पर सेम ग्रुप्स है, यहाँ पर भी सेम ग्रुप्स है. ये उधर इधर फिरा के लिखने से, ये इधर ले जाके, ये इधर ला के, और ये इधर रख के, ये इधर ले जाने से भी सेम कंपाउंड होगा, इसीलिए इट कैन नॉट एग्जिबिट. ये भी सेम PP एंड QQ. सो ये चेंज करके ये इधर लिखने से, ये इधर लिखने से भी नहीं बनेगा, सेम कंपाउंड आएगा. ओके, वो देखना चाहिए. सपोज सी हियर, क्वेश्चन इज लाइक दिस. ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आंसर कर सकती है कि नहीं, चेक कर लीजिए एक बार. विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? 1,1 diphenyl 1 butene, 1,1 diphenyl 2 butene, 2,3 dimethyl 2 butene, 3 phenyl 1 butene. 4 ऑप्शंस दिया गया है. सो विच वन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इसलिए पहला आप स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा. स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको पता चलेगा. 1,1 diphenyl 1 butene, 1,1 diphenyl 1 butene. ब्यूट है ना रूट वर्ड, इसीलिए 4 कार्बन एटम्स. 1,1 डाइफिनाइल, फर्स्ट वन, आई एम राइटिंग फर्स्ट वन. सो 1,1, ये 1 है, 1 के ऊपर 2 है. 1,1 डाइफिनाइल. फिनाइल ग्रुप मीन्स C6H5, C6H5 फिनाइल ग्रुप. और इसी तरह भी लिख सकते हैं आप, दिस इज फिनाइल ग्रुप, दिस इज फिनाइल ग्रुप, C6H5. यहाँ पर H होता है दूसरा. टोटल वैलेंसी 4 है ना, रिमेनिंग वैलेंसी सैटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन. 1,1 डाइफिनाइल हो गया. और 1 ब्यूटीन, 1 ये 1 कार्बन है ना, ये 1 के पास डबल बॉन्ड. यहाँ पर H होता है, CH2 CH2 CH3 होता है. ये आप जानते हैं ये पूरा. सो इज इट एग्जिबिट और नॉट? सी हियर, ये डबल बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड C. इसके पास सिमिलर ग्रुप्स है, दो भी सिमिलर ग्रुप्स. सॉरी, ये हाइड्रोजन नया आएगा ना, 4 बॉन्ड्स सेटिस्फाई हो गए. यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए. ओके, डबल बॉन्ड. सी, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आ गया. और ये कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन है, और 1 2 3, ये सॉरी, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन्स आएंगे यहाँ पर? नॉट हियर. सी, लुक एट द बोर्ड. यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, 2 3 4. ओके,
नाउ लाइक दिस 4 वैलेंस है ना, इसीलिए ये कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन है और इसके पास ये ग्रुप पूरा है, मीन्स सी एच एच एंड सी एच एच एच। समझे? देखो ये कार्बन के ऊपर दो भी सिमिलर ग्रुप्स है, फिनाइल ग्रुप, सो इट कैन नॉट एग्जिबिट। समझे क्या है ना ये? अंडरस्टैंड और नॉट दिस कंपाउंड? श्रुति, ये कंपाउंड के बारे में बता दो, यस और नो। ओके, लाइक दैट। ओके, दैट इज one compound and another compound 1,1-diphenyl 2-butene, 1,1-diphenyl 2-butene. Okay, understood, right? Very good, nice. Okay, right, our right structure of B, 1,1-diphenyl 2-butene, 1,1-diphenyl 2-butene. Can you write? ब्यूट बता दिया ना यहाँ पर, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन्स लिखो, उसके बाद नंबर डालो 1 2 3 4, आपका मर्जी, उधर से भी डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं नंबर। 1,1-diphenyl, यहाँ पर फिनाइल पीएच लिखते हैं फिनाइल को, डाइफेनाइल 2-ब्यूटीन, 2 के पास है डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2-ब्यूटीन, ये 1-ब्यूटीन है, ये 2-ब्यूटीन, 2 के पास डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन से ऐड करो H, और इसके लिए एक H आएगा, यहाँ पर एक H आएगा, 2 3 4 बॉन्ड्स, इसके लिए 3 हाइड्रोजन्स, लाइक दिस। सो ये देख लीजिए C डबल बॉन्ड C, ये कार्बन को एक H है, और यहाँ पर ये ग्रुप पूरा है, C PH PH एंड H। ओके, यहाँ पर क्या है, ये कार्बन के लिए एक तरफ H है और दूसरा तरफ ये पूरा ग्रुप है, दैट इज C H H एंड H, 3 हाइड्रोजन्स। समझे? See here, these 2 similar groups are arranged at same side, that is why it exhibit cis isomerism। सपोज ये हाइड्रोजन के यहाँ लिख के ये ग्रुप उधर ले जाने से ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। सो दिस कंपाउंड एग्जिबिट विच आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी तरह हम पहचान सकते हैं। सो बी आंसर इज करेक्ट। लाइक दैट यू कैन ट्राई लेटर सी एंड डी। ओके, नाउ अभी देख लीजिए यहाँ पर नॉमेनक्लेचर सिस्टम, सेम ग्रुप्स सेम साइड सिस, same groups different sides trans। ओके, एग्जाम्पल ये XY, ये तो टैली हो गया, यहाँ पर ये टैली हुआ, BB टैली हो गया, इसमें BB ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, इसमें ये सेम साइड, ये तो XY डिफरेंट है, यहाँ पर ये है ना, ये ग्रुप्स, दिस इज सिस आइसोमर, इसका ट्रांस लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड C, ये X ऐसा ही लिखो, ये इधर चेंज करके यहाँ पर Y, यहाँ पर ये आएगा, सो दिस बिकम्स ट्रांस। समझिए ना? सो Z सेम साइड है, XY डिफरेंट ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स सेम साइड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। आप लिख सकते हैं, एग्जांपल्स पूरे लिख सकते हैं आप। नाउ सी हियर, इज इट दिस कंपाउंड सिस और ट्रांस? यहाँ पर H तो कॉमन है ना, 2 कार्बन आइटम्स के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसीलिए ट्रांस। ट्रांस टू पेंटीन, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स, ट्रांस टू पेंटीन। ओके, इज इट एग्जिबिट? नो, ये कार्बन के ऊपर सिमिलर 2 ग्रुप्स है, ये कार्बन के ऊपर भी BR है, सो इट कैन नॉट एग्जिबिट। सिमिलर ग्रुप्स एक ही कार्बन पे होने से that cannot exhibit geometrical isomerism। okay, so understand or not? Finally क्या बता दिया है यहाँ पर मैं? which compounds exhibit, which do not exhibit means पहले ही मैं लिख दिया। so which compounds exhibit means compounds, structures। देखो यहाँ पर ये compounds
सी ए बी ए बी, सी ए बी ए सी, सी ए बी बी सी, सी ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये कैसा आता है कि उसको पढ़ा देंगे बाद में। सिमिलर ग्रुप के कार्बन के ऊपर सिमिलर ग्रुप्स रहने से दो भी डज नॉट एग्जिबिट, समझी। सो इसीलिए स्ट्रक्चर्स लिखने से आपको पता चल जाएगा इज इट एग्जिबिट और नॉट बोल के, राइट। सो ये तो हो गया। नेक्स्ट वन, सी हियर, सिस ट्रांस में दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल। ये टेबल में देखो डिफरेंसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ये लिखो, इंपॉर्टेंट है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सी डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस कंपाउंड इज ग्रेटर देन ट्रांस। डाइपोल मोमेंट, what is dipole moment? Do you know? Dipole moment, mu is equal to E into D. This is called a dipole moment, mu. Mu is equal to E into D. E means charge, D means distance between two charges. Suppose compound is like this. Compound is like this. C double bond C, Cl, Cl. and here H and H, ऐसा है कंपाउंड। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स पुल्ड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, नेट डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज सिस, इट्स डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू ई, ई मीन्स चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास में जाएंगे वो, इसीलिए इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लाइक दैट हियर आल्सो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू क्लोरीन एटम, दैट इज व्हाई इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव, कार्बन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव जितना होता है नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होता है, बट मैग्नीट्यूड इज सेम, साइन इज डिफरेंट। ये -50 है तो ये +50 आएगा। सो इसीलिए यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। E suppose 50 मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस ऐड करो, फॉर एग्जांपल 2, दैट इज नथिंग बट 100। इसको बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला यही है, म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई मीन्स चार्ज ऑफ द पोल एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, distance between the two charges, okay, like that. So ये सिस वाला कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, इसके लिए। ट्रांस वाला कंपाउंड में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl है, इधर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर इधर भी H है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन इधर पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये क्लोरीन इधर पुल करेगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करने से इसका नेट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा कि 0। ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने से वो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सेम साइड रहने से इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सम वैल्यू रहेगा, लेकिन इसका तो 0 हो जाएगा। So which compound has high dipole moment? High dipole moment means cis or trans. Cis has high dipole moment, trans has a low dipole moment comparatively. वही है वो पॉइंट वहाँ पर लिखा गया है ना, ये cis dipole moment of cis is greater than trans. Okay, because cis isomer has resultant of dipole, while in trans isomer dipole moments cancel out. Okay, cis isomer has resultant of dipoles, while in trans isomer dipole moments cancel out. Next, boiling point. Whose boiling point is more? cis का boiling point ज्यादा होता है, cis is greater than trans. ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बिट है ये पूरा, राइट। नाउ देखिए यहाँ पर सिस में क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, Cl, इधर H और H है, यहाँ पर ये इधर पुल होता है, इधर पुल होता है, नेट नेगेटिव चार्ज आएगा,
इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव रहने से मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। अट्रैक्शन ज्यादा होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बन जाता है। सो cis is greater than trans. Why means reason यहाँ पर बता दिया। Molecules having higher dipole moment have higher boiling point due to larger intermolecular force of attraction. Molecules के बीच में attraction ज्यादा होता है, इसीलिए that has high boiling point. उसके बाद solubility in water. Which is more soluble? Cis is more soluble than trans because cis के ऊपर charge होता है ना, इसीलिए ये वाटर मॉलिक्यूल से इजीली अट्रैक्ट होके उसमें इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। सो पार्शियल नेगेटिव होता है। सपोज ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल H2O है ना, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन गेट्स पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसीलिए दिस कंपाउंड इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर। विच कंपाउंड? सिस। ट्रांस के ऊपर ये चार्जेस नए आएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने से उसका वो नलिफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा चार्जेस, इसीलिए सिस इज मोर सॉल्युबल देन ट्रांस। इंपॉर्टेंट बिट। ओके, लाइक दैट मेल्टिंग पॉइंट, हुज मेल्टिंग पॉइंट इज मोर? मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी ट्रांस का ज्यादा होता है, रिमेनिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ट्रांस कंपाउंड है, ट्रांस कंपाउंड एक कंपाउंड में दूसरा कंपाउंड, सपोज मुझे सपोज ये ऐसा बैठ जाता है, इसमें ऐसा बैठ जाने से ट्रांस वाला कंपाउंड है, एक कंपाउंड में दूसरा कंपाउंड नजदीक आके ऐसा बैठ जाता है, एक कंपाउंड में और एक कंपाउंड, ऐसा आने से वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होता है। So look at the board here. Melting point trans is greater than cis. Melting point of trans is greater than cis isomer. So more symmetric isomers have higher melting points due to better packing in crystalline lattice, and trans isomers are more symmetric than cis. Means cis double bond C है ना, Cl ये H, this is symmetric compound, सिमेट्रिक कंपाउंड, इधर Cl H Cl ऐसा है। अगर सिस कंपाउंड है Cl Cl H ऐसा है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, ये सिमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने से दूसरा कंपाउंड इसमें आके ऐसा बैठ जाता है ये गैप में दूसरा कंपाउंड, इसीलिए फॉर नियर टू वन अनदर, दैट इज व्हाई इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट and it is more stable. Same reason यहाँ पर भी, the molecules having more van der Waals strain are less stable. In cis isomer the bulky groups are closer, they have larger van der Waals strain. So इसमें van der Waals strain means nothing but cis होने से नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होने से रिपेल होता है, दूर दूर जाते हैं, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, इसका स्टेबिलिटी तो ज्यादा होता है। सो दैट इज नॉट नेसेसरी, जस्ट दिस व्हाट यू कॉल which is stable and which is unstable. Trans is stable, cis is unstable. Whose melting point is more? Trans melting point more, cis melting point less. Solubility, boiling point and dipole moment cis has more than trans. Okay, like that. That is important one. Okay, okay. Now, see here, its mu value is 0. Its mu value is not equal to 0. Its mu value is 0. Means this compound is nothing but isa. CH3, एक ही साइड लिखना, दो भी CH3 और एक ही साइड H है यहाँ पर HH. Okay. So here mu is not equal to 0. एक ही साइड रहने से, ऑपोजिट साइड रहने से mu is equal to 0 बन जाएगा। H यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, mu is equal to 0. This is symmetric compound. That is why it is more stable. It has high melting point, like that. ऐसा जितने भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम। ओके,
So these are all not necessary here. Now अभी देखो, suppose compound में suppose C double bond C ABCD रहने से this compound also exhibit geometrical isomerism. बता दिए है ना वो geometrical isomerism. किस तरह geometrical isomerism एग्जिबिट करता है? सर ये तो सिमिलर ग्रुप्स नहीं है ना, कैसा एग्जिबिट करेगा? देखो अभी C एंड D है ना, 4 डिफरेंट ग्रुप्स A B C D 4 डिफरेंट ग्रुप्स है. इसको सिस ट्रांस बता नहीं सकते, लेकिन दूसरा किस्म से हम बता सकेंगे. सपोज C डबल बॉन्ड C H F Cl Br, isn't it? 4 डिफरेंट ग्रुप्स. यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा. एटॉमिक नंबर यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर हाउ मच? 9. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35. सी हियर एक ही कार्बन पे जो है एटम्स, ये 2 एटम्स कंपेयर करना पड़ेगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन. यहाँ पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपेयर करना पड़ेगा. ये 2 में हाइड्रोजन का तो लो एटॉमिक नंबर, लो एटॉमिक नंबर. दिस इज हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर. ओके, ये दोनों में 17 एंड 35. क्लोरीन तो लो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ये हाई एटॉमिक नंबर हो जाएगा. समझी? एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा यहाँ पर. अगर देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर, लो एटॉमिक नंबर, लो एटॉमिक नंबर एक ही तरफ आ गए. ये हाई एटॉमिक नंबर और हाई एटॉमिक नंबर एक ही साइड है, इसीलिए जस्ट लाइक सिस, सिमिलर ग्रुप्स एट सेम साइड, सिस ऑपोजिट साइड में रहने से ट्रांस. सो ये सिस होता है कि ट्रांस होता है? कि ट्रांस होता है, सिस होता है. लेकिन यहाँ पर सिस टर्म यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स है ना यहाँ पर, इसीलिए इसको बोले जाता है कि जो समान, ZUSSA जो समान कॉन्फ़िगरेशन, जो समान ZUSSA जो समान कॉन्फ़िगरेशन. ये तो लैटिन वर्ड है, इसको प्रोनाउंसिएट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि जेड कॉन्फ़िगरेशन, जो समान कॉन्फ़िगरेशन और जेड कॉन्फ़िगरेशन. जेड कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल्स विथ सिस. ओके, और इसका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं. स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C H इसी तरह रख दिया मैं, क्लोरीन को भी यहीं पर रख दिया. ये 2 एक्सचेंज कर दिया, ब्रोमीन ऊपर आ गया और क्लोरीन नीचे आ गया. ये तो लोअर एटॉमिक नंबर, ये हायर एटॉमिक नंबर. ये दोनों में ब्रोमीन लोअर एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन हायर एटॉमिक नंबर. हायर हायर ऑपोजिट आ गया, लोअर लोअर ऑपोजिट आ गया. मीन्स ट्रांस जैसा है, लेकिन ट्रांस नहीं यूज करना पड़ेगा बिकॉज 4 डिफरेंट ग्रुप्स. इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि एंटीजन, ENTGEN, एंटीजन कॉन्फ़िगरेशन. और ये तो प्रोनाउंसिएट करना मुश्किल होता है, लैटिन वर्ड है, इसीलिए इसको बताया जाता है कि ई कॉन्फ़िगरेशन. Okay, E configuration and Z configuration. If 4 different groups are present on 2 carbon atoms, then EZ configuration should be used instead of cis and trans isomerism. Okay, geometrical isomerism is commonly called as cis trans isomerism. Cis trans isomerism means nothing but geometrical isomerism. दूसरा वर्ड है उसके लिए, दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए. ओके, समझी? जेड कॉन्फ़िगरेशन एंड ई कॉन्फ़िगरेशन. अभी देखो दूसरा बताऊंगा मैं. लुक एट द बोर्ड नाउ. अभी भेज देंगे यहाँ पर. ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड. यहाँ पर कंपाउंड इसी तरह है, C डबल बॉन्ड C. यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3, CH2, CH3 ऐसा लिखेंगे. CH2, CH3. ओके,
यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। अभी बताओ, इज इट ट्रांस और सिस? कैसा बताएंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, ये लो एटॉमिक नंबर, ये हायर एटॉमिक नंबर फ्लोरीन। यहाँ पर कार्बन से कार्बन लिंक है, यहाँ पर भी कार्बन से कार्बन लिंक है। ओके, सो इसीलिए नेक्स्ट कार्बन के बाद क्या क्या है यहाँ पर? ये कार्बन के पास हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स है, इजंट इट? ये कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन्स है? 3 हाइड्रोजन्स लिंक होके है। ये कार्बन देखो, ये कार्बन को कितने हाइड्रोजन्स है, कितने कार्बन एटम्स है? इधर ये कार्बन से लिंक होता है ना, सी एंड H, H। समझी क्या नहीं? देख यहाँ पर ये कैसा है, किस तरह है? ऐसा है ना, CH2 CH3 है ना ये ग्रुप। ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये CH2 CH3। अभी देखो क्या क्या है, ये कार्बन को क्या अटैच हो गया? एक C है, और ये बॉन्ड किससे होगा? ये C ये कार्बन से लिंक होके है। ओके, इसके पास, ये कार्बन के पास एक C है, और ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन। ये कार्बन के साथ साथ क्या है वो देखना पड़ेगा, ये कार्बन के साथ नहीं। डबल बॉन्ड कार्बन को जो लिंक होके है वो कार्बन को क्या क्या है? ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन, इसे ये कार्बन लिंक होके है। उसके पास दूसरा ये कार्बन है, मीन्स दिस कार्बन। ओके, और वो कार्बन को क्या क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स है। सो ये एटॉमिक वेट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। CH, यहाँ पर क्या क्या है? CH है। ओके, समझे? ये कार्बन को लिए, ये कार्बन के पास कार्बन H 3 हाइड्रोजन है। ये कार्बन के लिए ये कार्बन है, ये कार्बन, और 2 हाइड्रोजन है H। सो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ये कार्बन तो सेम है ना, इसके बाद नेक्स्ट ये कार्बन आ गया, इसीलिए ये हेवियर हो जाएगा। इसके पास 3 भी हाइड्रोजन्स है, इसीलिए ये लोअर हो जाएगा। सो लोअर सेम साइड है, इसीलिए जेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जेड कॉन्फ़िगरेशन। समझी क्या नहीं है? వెళ్తున్నావా? समझी क्या नहीं? एक बार మెసేజ్ रख दे చాట్ బాక్స్ में। ఏంటి వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాశారా? అందరూ ఉన్నారా బాయ్స్? అక్కడ అమ్మాయి ఉంది కదా, 8 వరకు కూర్చోబెట్టమను. అది చేస్తున్నారా మిగతా వాళ్ళు? రైట్, ఓకే ఓకే. Okay, definitely I'll repeat it. See, compound is like this. फिर एक बार मैं बता दूंगा, ये तो समझना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। No problem, I will explain you. See, compound is like this. C double bond C. यहाँ पर H है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या है? CH3 है। ये CH3 का स्ट्रक्चर मैं लिख दूंगा ऐसा, CH3। ऐसा लिखने से आप समझ जा सकती है। CH3, this CH3 can be written as like this, और this one CH2 CH3 है, यहाँ पर C H2 H CH2 CH3 CH3, ये है ना स्ट्रक्चर, isn't it? Both are same, these two structures are same. अभी देखो, ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन 9, 1 is less, low atomic number, it is high atomic number. ओके, और ये 2 में देखो, इसके बाद कार्बन है, इसको भी कार्बन है, 2 भी कार्बन है। अब कौन सा हेवियर, कौन सा लोअर हो सकता है?
इसके बाद इसे क्या अटैच होके है, क्या अटैच होके है, ये कार्बन को, ये कार्बन अटैच होके है इस तरफ, और दो हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझी, ये दो हाइड्रोजन और ये कार्बन, इसके पास ये कार्बन को, क्योंकि दो भी सिमिलर हो गए हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन हो गया, यहाँ पर भी दो भी कार्बन हो गए, इसीलिए ये दो भी कार्बन हो गए, इसीलिए नेक्स्ट आइटम्स का देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम्स क्या है, ये कार्बन को क्या क्या अटैच होके है देखना, यहाँ पर ये कार्बन है और दो हाइड्रोजन अटैच होके है, ये कार्बन को तीन भी, ये कार्बन के लिए 1 2 3 भी हाइड्रोजन आइटम्स है, 3 हाइड्रोजन आइटम्स, ओके। ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन वाला, ये कार्बन देखना पड़ेगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन वाला को, ये कार्बन को, दिस वन क्या क्या है इसके लिए, ये कार्बन है, दिस कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन वाला, ये डबल बॉन्डेड कार्बन वाला, ये डबल बॉन्डेड कार्बन वाला को एक कार्बन अटैच होके है, ये कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। सो इसीलिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन वाला छोड़ के यहाँ पर कार्बन है, इसको भी कार्बन है, इसके बाद 3 भी हाइड्रोजन है, इसके पास एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए ये हेवियर हो जाएगा, ये लाइटर हो जाएगा। अंडरस्टैंड और नॉट? सी डबल बॉन्ड सी, एच एफ, इसके पास क्या है, ये कार्बन के पास 3 भी हाइड्रोजन है, इसे भी कार्बन लिंक होके है डायरेक्ट, अगर दो अलग अलग हो गया तो एक हेवियर लाइटर बोल सकते हैं, एक कार्बन एक हाइड्रोजन होने से हाइड्रोजन लाइटर सर, कार्बन हेवियर सर बोल सकते हैं, दो भी कार्बन है, इसीलिए नेक्स्ट आइटम्स को लेना पड़ेगा। इसके बाद ये कार्बन को क्या क्या अटैच होके है, 2 हाइड्रोजन अटैच होके है और ये कार्बन अटैच होके है, वो कार्बन के पास 3 है, ये जरूर नहीं हम लोगों को, ये कार्बन इंपॉर्टेंट है, ये दो भी सिमिलर है, इसके पास 3 भी हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, सो इसे सी एच एच लिखना पड़ेगा, ये कार्बन और ये एच और ये एच, सी एच एच, इसको कैसा लिखना पड़ेगा, ये कार्बन को 3 भी हाइड्रोजन है, एच एच एच, ओके, 3 भी हाइड्रोजन, यहाँ पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये कार्बन को 3 भी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, सो विच इज हेवियर मीन्स इसके पास कार्बन भी है ना, ये कार्बन अटैच होके है ना, दिस कार्बन, दैट इज वाई दिस इज हेवियर, दिस इज लाइटर। अभी समझे क्या नहीं, एक बार बता दे सर, दीज आर 5 हाइड्रोजन विथ 2 कार्बन, राइट, नो ओके, फिर समझा मैं, ये तो वेट, सो अभी समझे क्या नहीं, अभी बताया ना, वो समझे क्या नहीं, हाँ देखो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एच लिख दिया, यहाँ पर फ्लोरीन लिख दिया, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 9, ये तो हेवियर हो गया, ये तो लाइटर हो गया, यहाँ पर क्या है, CH3 है, CH3, ये देखो यहाँ पर भी CH2 CH3 है, CH2 CH3, ये हाइड्रोजन काउंट नहीं करना पड़ेगा, ये कार्बन को काउंट नहीं करना पड़ेगा, इमीडिएट इसके साथ इमीडिएटली कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, दो भी कार्बन रहने से विच इज लाइटर विच इज हेवियर बता नहीं सकेंगे, समझी, बता नहीं सकेंगे दो भी कार्बन होने से, इसीलिए नेक्स्ट एटम्स देखना पड़ेगा, नेक्स्ट एटम्स क्या है, ये कार्बन के लिए 3 भी हाइड्रोजन है, H H H है यहाँ पर, ये कार्बन को क्या क्या लिंक होके है, ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन ये वाला कार्बन अटैच होके है,
इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। एटॉमिक वेट कार्बन लिखना पड़ेगा, पहले कार्बन लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 हाइड्रोजन्स लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस हो गया। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन्स है। सो ये कार्बन है ना, हेवियर हो गया ना यहाँ पर, दैट इज व्हाई इट इज हेवियर। ओके ओके, ये हाइड्रोजन्स की जरूरत ही नहीं है, ये हाइड्रोजन्स यू नीड नॉट काउंट, ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जो बाइंड हो गया वो कार्बन का देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर, अंडरस्टूड। नाउ अभी दूसरा बार बता दिया, इज इट अंडरस्टूड और नॉट? अभी रखो यस और नो, जस्ट रख दीजिए, मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा, समझी ना? राइट क्या श्रुति, समझी के या नहीं? यस और नो रख दे एक बार चार्ट बॉक्स में। अगर दूसरा कंपाउंड एक दूंगा मैं, उसका आंसर बता दे। ओके यस, नाउ कंपाउंड इज लाइक दिस। सपोज कंपाउंड ऐसा है, सी डबल बॉन्ड सी, व्हाट यू कॉल OH है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर व्हाट यू कॉल COOH है, यहाँ पर CH3 है। Is it cis or is it what you call Z configuration or E configuration? 4 different groups, क्या बता सकती है? ट्राई कर मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखो, अगर नहीं तो ये इधर देखो, बोथ तरफ सी एंड वो है ना, यहाँ पर वो डायरेक्ट ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जो अटैच होके है वो एटम का एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, यहाँ पर डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच होके है NH2, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ये हेवियर है, ये लोअर है, समझ गए ना? इजी, डायरेक्टली विच एटम इज अटैच्ड वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन। अगर दो भी सेम किस्म के है, दो भी ऑक्सीजन है, दो भी नाइट्रोजन है, जब नेक्स्ट एटम देखना पड़ेगा, समझिए ना? राइट, यहाँ पर देखो, ये सी दो भी एक ही हो गया ना, कार्बन। सो विच इज हेवियर विच इज लाइटर मीन्स नेक्स्ट एटम देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड वो COOH इसी तरह रहेगा, ये COOH ग्रुप अटैचमेंट। यहाँ पर CH3 इसी तरह होगा, CH3। ओके, सो नाउ देखो, यहाँ पर ये तो पता चल गया, हेवियर एंड लाइटर OH एंड NH2 में। यहाँ पर कार्बन सेम हो गया, यहाँ पर भी नेक्स्ट एटम। अभी देखना, यहाँ पर इसके पास क्या क्या है, हाइड्रोजन है, समझी? नेक्स्ट एटम देखना पड़ेगा, ये दो इक्वल होने से ये कार्बन, और इसके पास क्या क्या है, ये हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन है। इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड हो गया तो 2 बार लिखना पड़ेगा, वो इसके लिए 2 बार लिखा मैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, और एक बाजू का और एक ऑक्सीजन है, दिस वन थर्ड ऑक्सीजन। सो वो है इसके पास H है, वो का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। सो ये 8 है ना, इसीलिए हेवियर, ये हाइड्रोजन लाइटर। सो हेवियर सेम साइड है, दो भी हेवियर सेम साइड है, इसीलिए दिस इज ज़ूसमन कॉन्फ़िगरेशन, Z कॉन्फ़िगरेशन। समझी क्या? नहीं, दिस वन बता दे, जल्दी से बता दे। सिस आइसोमर, सिस नहीं, Z कॉन्फ़िगरेशन आ गया, देख, समझिए? अभी मैं बता दिया ना, यहाँ डबल बॉन्ड होने से 2 बार लिखना। ये कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ये कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन के लिए ये 2 ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड हो गया तो, सिंगल बॉन्ड हो गया तो 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसीलिए ये हेवी है। समझी क्या ना ये? और लिख दे चार्ट बॉक्स में जल्दी से। यस सर, अंडरस्टूड। ओके राइट, अभी मैं एक दूंगा, ट्राई कर फिर एक बार। सिस ट्रांस आइसोमर इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरा वाला ऐसा दिया गया CH3 CH2 C what you call Cl. Okay, Cl. Oh shit, क्या गया? Right, what you call MIND. ఏం బుక్ తీస్తున్నావు నువ్వు? ఎన్ని బుక్స్ తీసుకెళ్తావు? సి అండ్ హియర్ सपोज what you call CHO, यहाँ पर COOH, बता दे जल्दी से। इज इट सिस ट्रांस नहीं बोलना, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स है ना, उसे Z और E वो बता दे बस, Z और E। ओके बता दे जल्दी श्रुति, क्या है वो कंपाउंड? Z कॉन्फ़िगरेशन और E कॉन्फ़िगरेशन। See here carbon directly, here also carbon, दो भी इक्वल हो गए, इसीलिए नेक्स्ट आइटम देखना पड़ेगा। CHO का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O H है ना, CHO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। COOH का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O OH ऐसा होता है। ई कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ओके सी, दो भी सी इक्वल हो गए, AC और AC। इसके पास क्या क्या है? डबल बॉन्ड वो है, इसीलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, हेवियर आइटम्स पहला लिखना, वो 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ऐसा है तो 2 टाइम्स वो H। इसके पास क्या है? ये C को क्या अटैच हो गया है? वो है ना यहाँ पर डबल बॉन्ड वो 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी वो है, फिर भी वो लिखना पड़ेगा, समझी? सो ये देखो वो ये भी सेम आ गए, यहाँ पर वो है, इसका एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, दैट इज व्हाई इट इज लो, इट इज हेवियर एटम। अदे व्हाट यू कॉल हाई एटॉमिक नंबर, लो एटॉमिक नंबर। अभी देखो यहाँ पर C डायरेक्ट अटैच हो गया, यहाँ पर Cl, ये तो अलग अलग है ना, डायरेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर कार्बन एटॉमिक नंबर 6, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कार्बन का 6, सो इट इज लोअर एटॉमिक नंबर, इट इज हायर एटॉमिक नंबर। हायर सेम साइड है, लोअर सेम साइड है, इसीलिए Z कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी? E कॉन्फ़िगरेशन लिखी, रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। अभी समझे क्या नहीं? कैसा लिखना है, किस तरह लिखना है? CHO C डबल बॉन्ड वो H, ये वो 2 टाइम्स लिखना, H यहाँ पर लिखना, और ये COOH है, COOH का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है, C डबल बॉन्ड वो H। डबल बॉन्ड वो रहने से 2 बार लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन 2 टाइम्स, और दूसरा वाला ये ऑक्सीजन। सो 3 ऑक्सीजन आइटम्स है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। ये फर्स्ट 2 सिमिलर है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हेवियर, हाइड्रोजन लाइटर।
ओके, यहाँ पर डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये तो कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन 17, कार्बन 6, इट इज लोअर, इट इज हेवियर। ओके, ये तो इजी है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है CHO एंड COOH रहने से। समझी क्या नहीं? यस सर, अंडरस्टूड। ओके, राइट। सो दैट इज अबाउट EZ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ आप देखेंगे EZ कॉन्फ़िगरेशन के बाद दैट इज EZ कॉन्फ़िगरेशन। समझी? अगर इसमें भी EZ कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसमें? ऑक्सेन्स में होता है, अभी तक जो बताया मैं। देखो यहाँ पर COOH रहने से कितने ऑक्सीजन लिखे हैं हम? 3 ऑक्सीजन आइटम्स लिख चुके हैं वहां पर। ओके, वो और राइट, see look at the board. COOH 3 ऑक्सीजन आइटम, CH2Cl मीन्स पहला Cl आएगा, उसके बाद 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन 17, ऑक्सीजन 8, इट इज हेवियर, इट इज लाइटर। यहाँ पर CH2, ABC 2 भी कॉमन हो गए, फिर इसके पास C है, इसके पास C है, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर किस तरह से लिखेगी? ट्रिपल बॉन्ड है तो वेट शिट, ओके। सो दिस इज व्हाट यू कॉल, क्लोरीन है ना यहाँ पर अटैचमेंट, क्लोरीन। यहाँ पर व्हाट यू कॉल ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन रहने से क्लोरीन 17 होता है, ऑक्सीजन 8, इट इज लोअर, इट इज हायर। ओके, सो इसके पास 3 कार्बन लिखना पड़ेगा, C के बाद ये 3 कार्बन लिखना पड़ेगा, C। यहाँ पर ये 2 कार्बन 1 हो गए, ये कार्बन के बाद ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, H। ये 3 भी कार्बन आइटम्स, C ट्रिपल बॉन्ड C है ना ये, इसीलिए 3 बार लिखना पड़ेगा। ये कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन के लिए 3 कार्बन है। सो इट इज हेवियर, इट इज लाइटर। सो यहाँ पर लाइटर एंड लाइटर इधर आ गया, ऑपोजिट, दैट इज वाई E कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो ये थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये देखो, सी compounds containing CNOH means oximes. Oximes means C double bond NOH, oxime. See, this is a compound, C double bond NOH HCH3. ओके, इसे बोलते हैं कि सिस ट्रांस भी नहीं बोलते हैं, सिस ट्रांस, और दूसरा है कि सिस ट्रांस के बाद व्हाट यू कॉल E एंड Z, EZ भी नहीं बोल सकते हैं, सिस ट्रांस भी नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कि सिन एंड एंटी। देखो कंपाउंड इसी तरह है, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, HOH 2 भी राइट हैंड साइड रहने से सिन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये HOH ऑपोजिट में आने से दैट इज कॉल्ड एंटी, याद रखो। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स, ऑक्साइम्स मीन्स ये लिखो, ऑक्साइम्स जनरल फार्मूला C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम्स।
सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, ये सी के लिए एक H है, एक मिथाइल ग्रुप है ये। ओके, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लिख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। इफ H and OH are present at the same side, then it is called syn. If H and OH are present at opposite direction, then called as anti. In which compounds? In oximes. Which are oximes? C double bond NOH रहने से वो compounds को बोलते हैं कि oximes. ओके, वो लिख लीजिए एग्जाम्पल। उसके बाद बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्ड ऑक्साइम, दिस इज कॉल्ड एसिटॉल्ड ऑक्साइम। ये पहले यहाँ पर लिखे हैं ना, ये एसिटॉल्ड ऑक्साइम, एसिटॉल्ड ऑक्साइम। एसिटॉल्ड ऑक्साइम में सिन होता है और एंटी होता है। ये बेंजाल्ड ऑक्साइम सेम एन डबल बॉन्ड वो एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, देखो इसमें भी वही है, सेम ए ग्रुप सेम है, मीन्स ऑक्साइम, इट इज आल्सो ऑक्साइम। एच इसी तरह है, यहाँ पर मिथाइल के प्लेस में फिनाइल ग्रुप है C6H5, so that is why it is called benzaled oxime. pH means phenyl, benzaled oxime, C6H5, इसका मतलब pH means C6H5, phenyl group. ओके, देखो यहाँ पर H and OH सेम साइड है, इसीलिए sin. H and OH opposite direction, anti. Note down that example also. Benzaled oxime, it is acetald oxime. पहला वाला acetald oxime, this one acetald oxime, it is benzaled oxime. HOH एक ही साइड रहने से sin, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने से एंटी। ओके, लाइक दैट। ओके, और एजो कंपाउंड्स में, एजो कंपाउंड मीन्स एन डबल बॉन्ड एन होता है। सी दिस इज एजो कंपाउंड, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर एक तरफ, दोनों फिनाइल ग्रुप्स एक तरफ रहने से सिन, ऑपोजिट डायरेक्शन में आने से एंटी, सिन एंड एंटी। इट्स नेम इज एजोबेंजीन। एजोबेंजीन मीन्स कंपाउंड इज लाइक दिस, एजोबेंजीन, एन डबल बॉन्ड एन यहाँ पर और एक फिनाइल ग्रुप, इसके ऊपर एक लोन पेयर, इसके ऊपर एक लोन पेयर। इफ टू लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट सेम साइड, देन इट इज कॉल्ड सिन। ये क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा है ना ये, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी, एंटी। एजो कंपाउंड मीन्स एन डबल बॉन्ड एन रहने से कंपाउंड में एजो कंपाउंड बोलते हैं उसको, समझे? यस, दैट इज अबाउट व्हाट यू कॉल 1%, राइट। That is about what you call geometrical isomerism, completely completed geometrical isomerism. अभी next optical isomerism. Tomorrow I'll take at same time, that is 6:30, and I will complete optical isomerism tomorrow. उसके बाद next topics, purification of organic compounds, estimation, detection of organic compounds, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये दो टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, राइट, ओके, टुमारो विल कंटिन्यू।